O Lord, rescue me from evil people. Protect me from those who are violent. For our meditation this morning, I have chosen from Jeremiah chapter 42, verse 6. Whether it is good or bad, we will obey the voice of the Lord our God, to whom we are sending you, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Good morning, friends. We need to obey the Lord. No matter what God expects from us, we need to just trust and obey. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is trust and obey. This was the time when the commander Johanan and all the people with him went to Jeremiah the prophet, seeking God's mercy so that he may pray for them, so that God would lead them further. For at that point in time, they were afraid of the Chaldeans and they wanted to go to Egypt so that they could live there peacefully. And there was enough food there. There was no famine around. At that point in time, Jeremiah was supposed to go and pray for them, plead for them. And they said to Jeremiah that they would listen to him. For Jeremiah told them, when he goes and prays, the Lord will certainly answer him, and all of these people who sought prayers should obey the Lord. For whatever God says, he will not keep anything away from them. He would tell them everything and they need to obey. At that point in time, these people said, whether it is good or bad, pleasant or unpleasant, favorable or unfavorable, we will obey the voice of the Lord. Because obeying the voice of the Lord will certainly be well with us. Friends, this is the faith that we need to have. We go and seek God's guidance and help. We pray before the Lord. We plead before the Lord. But we should be sure that we will listen to the voice of God. When God answers, it may be favorable to us or unfavorable. It may be good or bad at that point in time. But we need to obey the Lord whatever He says. When we seek God's help, we need to trust Him with His answer. It may be favorable or unfavorable. But we need to trust God. For when we have sought His help, when we have surrendered ourselves to Him, He will do everything which is good for us. Maybe at that point in time it may not look good. It may not look favorable. But we need to trust God and obey the Lord. Gracious God, our Heavenly Father, we thank You, Lord, for helping us to obey You, trust in You, for we believe that You do everything good for us. In Christ's name we pray. Amen. यहोवा मुझे बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी मनुष्य से मेरी रक्षा कर। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यिर्मयाह अध्याय 42 और उसका 6वां वाक्य। चाहे वे भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। आपका दिन आशीषित हो। मित्रों, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर हमसे जो कुछ चाहे हम उस पर भरोसा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उस पर भरोसा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। ये वह समय की बात है जब जो सेनापति था, साथ ही साथ उसके साथ लोग भी यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचते हैं। वे परमेश्वर की दया चाहते थे और वे चाहते थे कि यिर्मयाह उनके लिए प्रार्थना करे और परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, क्योंकि इस वक्त वे चलियन से भयभीत थे और वे मिस्र देश जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वे वहां पर शांतिपूर्ण रह पाएंगे और वहां पर भोजन की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वहां पर अकाल नहीं था। और उस वक्त यिर्मयाह को उनके लिए प्रार्थना करनी थी और उनके लिए परमेश्वर से गुहार लगानी थी। उन्होंने यिर्मयाह से कहा था कि जो वह कहेगा उसे वे मानेंगे, क्योंकि यिर्मयाह ने उनसे कहा था कि जब वे प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर अवश्य उसे जवाब देगा। और जो लोग
प्रार्थना की गुहार लगा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और यिर्मयाह बताता है, जो बात परमेश्वर उसे बताएंगे वह लोगों तक पहुंचाएगा, लेकिन उन्हें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना होगा। तब इन लोगों ने कहा, बात भली हो या ना हो, हमारे अनुकूल हो या ना हो, हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमारा भला होगा। मित्रों, इस प्रकार का विश्वास हमारे पास होना चाहिए। हम परमेश्वर से सहायता की गुहार लगाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज को भी सुनना चाहिए। जब परमेश्वर जवाब देता है तो वह हमारे अनुकूल हो सकता है और नहीं भी, हमें भला लग सकता है या बुरा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर जो कहता है हम उसे सुने। जब हम परमेश्वर की सहायता मांगते हैं तब हम उस पर भरोसा करें जब वो हमें जवाब देता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की सहायता की गुहार लगाते हैं और हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं, तब परमेश्वर वह सब करता है जो हमारे लिए भला है। हो सकता है उस समय वे भला ना लगे और हमारे अनुकूल ना लगे, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर तेरी आज्ञाओं का पालन करें। हम तुझ पर भरोसा करें, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि तू सब कुछ हमारी भलाई के लिए करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।